Hello, hi, namaskar, and welcome to my channel, The Muscle Teacher. Today we'll be starting with the chapter The Rise of Nationalism in Europe. In Europe. Okay, we'll start with this chapter of class 10th. Okay, we are continuing with the NCERT series, and today we'll have a short discussion on it. Okay, as usual, I'll be dividing this chapter into two parts. Okay, part one and part two. I hope today I'll be completing it till the Napoleonic Code. Okay, and after the Napoleonic Code, again I'll be continuing with the second part. Okay, so let's start. Okay, let's start with the chapter. Okay, then. Okay, I'm sorry. Rise of nationalism in Europe. In Europe. So we'll have a short discussion in it. Okay, on it before starting. Okay, before starting, we'll have a short discussion. So, Europe. Okay, if you talk about Europe in early 19th century. Okay, Europe. If we talk about Europe in early 19th century. Okay, see if you consider Europe in early 19th century. Okay, uh, it was not a land of nation. Okay, it was not a land of nation, but a land of empires. Just give me a moment. I think you know the video. I'm not getting the enough focus. Okay, just give me a moment. Let me check it again. Okay, done now. Okay, so as I said, okay, Europe. Okay, an early 19th century. It was not a land. Okay, it was not a land. Of nations. It was not a land of nations. Rather, it's a land of. Rather, it's a land of empires. It's a land of empires. Okay? It's not a land of nations, but rather it's a land of empires. You know, because people spoke different languages, followed different cultures, and yet lived under the rule of powerful monarch. ओके उस टाइम ये जो एम्पायर हुआ करता था ठीक है पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर ओके डिफरेंट ट्रेडिशंस एंड स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस ठीक है दे ऑल डू लिव इन अंडर द पावरफुल मोनार्क अंडर द पावरफुल मोनार्क ठीक है अंडर द पावरफुल मोनार्क you will see okay during that point of time there was no Germany, no Italy, and no sense of unity. Okay, if we okay if we consider if we consider today's time, if you consider today's time Italy, okay, if you consider today's time Germany. Okay. There was no Italy, no Germany during that point of time. There was no Italy, no Germany. There was also no sense of unity, also. No sense of unity, also among people. No sense. No sense of unity among people as well. Okay. And धीरे धीरे करके क्या हुआ पता है कि जब लोगों के यहाँ ये यूनिटी का सेंस ही नहीं है ओके धीरे धीरे लोगों के यहाँ यूनिटी का सेंस ही नहीं है देन comes the idea of nationalism. Then comes the idea of nationalism. ठीक है if in standard 9 you must have heard ठीक है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोग का हुआ था ठीक है हम लोग का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ना 1789
Okay, French Revolution. You'll see the ideas of liberty. Okay, the ideas of equality. It traveled all around the Europe. It traveled all around the Europe. धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये आने लगा कि नहीं, हम लोग के साथ कुछ गलत हो रहा है, वी शुड टेक सम स्टेप्स. ठीक है, ऐसा सब चीज होने लगा. तो वहीं से धीरे 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 करके क्या हुआ, ये जो आइडिया था नेशनलिज्म का, ये धीरे धीरे प्रोक्योर करने लगा यूरोप के अलग अलग जगहों में. ठीक है, जो लव था किसके यहाँ, टूवर्ड्स द ओन कंट्री, टूवर्ड्स ओन कंट्री. जो लव था टूवर्ड्स योर ओन कंट्री, द वननेस था टूवर्ड्स योर ओन कंट्री. ठीक है, ये धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये धीरे धीरे बढ़ने लगा. ठीक है, देन क्या हुआ, सी the idea, okay, because this nationalism, this idea, okay, it shared, okay, this nationalism, okay, this idea, it shared a common language, culture, history and destiny. Okay, क्योंकि अगर ये लोगों के दिमाग में आ गया कि नहीं, we do have love for our own country, obviously when the word nation comes, always remember it do have a big impact on the culture side. We have a common culture, we have a common shared history. Okay, common culture. ठीक है, common shared history ये भी था. ठीक है, एंड इसी से कि नहीं, हम लोग के जो पूर्वज जो है, हम लोग इतने लोग प्रॉब्लम में फंसे हैं, इतने लोग प्रॉब्लम में होकर आज हम लोग को इंडिपेंडेंस. जैसे फॉर एन एग्जांपल, आई विल गिव एग्जांपल ऑफ इंडिया. ठीक है, if we talk India as a nation, obviously we are having a common culture, we are having a common shared history. लोगों के दिमाग में है ना कि हम लोग ब्रिटिशर्स में, सारे लोग, भारत के पूरे लोग ब्रिटिशर्स द्वारा they have been exploited. Okay, they have been exploited. Yes or no? उनको एक्सप्लॉइट किया गया है, उनके ऊपर लूटपाट किया गया है. Yes or no? They have suffered a lot, be it of any religion, be it of any caste. People have suffered a lot. Yes or no? People have suffered. The people belonging to this, you can say, landlords, people belonging to zamindars, people belonging to peasants or workers, they all have suffered. Kings also suffered. Nawaz, Rajwadi, everyone, all have suffered. Okay, so ये जो है, because they are having a common shared history. Okay, and now what happened? You see, these idea, okay, they challenged empires, inspired revolutions, and they redrew, okay, and they redrew the map of Europe forever. Okay, and this idea of nationalism, okay, it redrew, okay, it redrew, okay, the nation of Europe. ठीक है, यही जो नो द सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस, यही जो सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस, it started to redraw, okay, the map. It started to redraw how Europe should be. ठीक है, and we'll have a, okay, greater talk on this, okay, Europe now. You'll see whenever you'll see whenever we're having this ideas, okay, the people are having these ideas of French Revolution, to secret societies, to how this unification of Germany, how this unification of Italy. Okay, if you are talking this, okay, you'll see this this whole of this chapter, okay, whole of this story talks about a different scenario. Okay, talks about a different scenario, how people, how the emotions, okay, how the emotion, how the people, okay, how different symbols, how the sacrifices, okay, all have come together, okay, all have come together and created the nation of Europe. ठीक है, जो भी है फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू होकर जितना भी हम लोग का है, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वी कैन टॉक अबाउट द सीक्रेट सोसाइटीज, वी कैन टॉक अबाउट दिस, हाउ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हैज हैपेंड, हाउ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली हैज हैपेंड. इफ यू टॉक ऑल अबाउट दिस इज ऑल शेयर्ड इमोशन. दिस इज ऑल शेयर्ड इमोशन कि कैसे लोग मिल बांट कर मिलके, ठीक है, कैसे लोग मिलके क्रिएट किए हैं किसको, यूरोप को. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, सो let's start with the chapter.
See, in this chapter, okay, I'll give you a short brief. Okay, I'll give you a short brief about something. Now, see, if we talk about this, French, okay, Revolution. If we talk about this French Revolution, you'll see before French Revolution, okay, before French Revolution, मतलब before 17 revolution से होने से पहले, ठीक है. If we talk about France, if we talk about France, we'll see during that point of time France was a monarch. Yes or no? France जो था वो क्या था? एक monarch था. Yes or no? फ्रांस जो था वो क्या था? एक मोनार्क था. धीरे धीरे क्या हुआ? मोनार्क से वो बदल कर क्या होने लगा? देन इट चेंजेस टू व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. देन उसके बाद अगेन ये चेंज होकर क्या हुआ? क्या हुआ? रिपब्लिक. क्या हुआ? रिपब्लिक. ठीक है. एंड ये जो होल जो पाथ था, ठीक है, कहां से? मोनार्की से रिपब्लिक तक. ये जो होल जो पाथ था कहां से? मोनार्की से लेकर रिपब्लिक तक. ये जो पाथ को हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रेंच रेवोल्यूशन. ये जो पाथ को हम क्या बोलते हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलते हैं. am I clear or not? समझ में आया कि नहीं यार? ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू लुक एट फ्रांस एट द टाइम ऑफ 1789, बिफोर दैट, ठीक है, अगर हम फ्रांस को देखें तो वो क्या था? एक मोनार्की था. मतलब राजा का शासन वहां पर चल रहा था. ठीक है. धीरे क्या हुआ? वो जो राजा जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ. तो राजा जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. राजा तो रहेगा लेकिन ही हैव टू वर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन उसके हिसाब से वो काम करेगा. देन अब धीरे क्या हुआ? टोटल क्या होगा? रिपब्लिक पे चला गया. ओके. Now, when they move to republic, okay, now they have to, they have to work at the process of this, elected representative. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हुआ? This whole process was called as what? Was called as what? French Revolution. Was called as what? French Revolution. ठीक है. Okay. Now देखो अब क्या हुआ? देखो. And see this revolutionary, okay, and see in this revolution and this revolution, in this revolution there are different revolutionary activities are being done. Okay, in this French Revolution there are different revolutionary activities are being done, and those revolutionary activities which are done by those people are done by those French revolutionaries जो उस रेवोल्यूशन को जो कैरी आउट कर रहे थे, उन्होंने ऐसा क्या स्टेप ले लिए. ठीक है. दीज फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज दे टुक व्हाट ऑल स्टेप्स दैट लिटरली दैट फ्रांस become a nation state. That France become a नेशनल स्टेट. ऐसा क्या हो गया? ऐसा इन लोगों ने ऐसा क्या स्टेप ऐसे ले लिए जिसके वजह से जो फ्रांस जो था वो धीरे क्या हो गया? एक नेशन स्टेट बन गया, एक नेशन बन गया. हाउ डज दिस फ्रांस पीपल, द पीपल ऑफ फ्रांस, दे हैव अ कलेक्टिव ओके बिलोंगिंग. They have a collective belonging, a sense of collective belonging. लोगों के दिमाग में कैसा है कि नहीं हम लोग सब एक हैं, हम लोग के ऊपर अत्याचार हो रहा है, we should be together. ये जो प्यार उनका तो कैसे आ गया? अचानक से ऐसा क्या हो गया? What was said this French Revolution took so that these people had made them feel कि नहीं आप लोगों के ऊपर you are being exploited, आप लोगों को अत्याचार हो रहा है, आप लोगों को इकट्ठा खड़ा होना होगा. What was said? So we will be going to the step one by one. ठीक है. एक करके हम लोग उस स्टेप्स को देखेंगे. ठीक है. नो वी कैन से दैट स्टेप्स ओके टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज. ठीक है. फॉर वी कैन से दैट मेकिंग अ नेशन स्टेट. ऐसा क्या स्टेप्स they have been taken by the French Revolution in order to make this a nation state. ठीक है. तो पढ़ते हैं. पहला क्या था?
ला पैट्रे ला सिटियोयन सिटी, ठीक है, ला पैट्रे एंड ला सिटियोयन, ठीक है। आई गेस स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया शायद, ठीक है, ऐसा है शायद, ठीक है, ला पैट्रे, ओके, एंड सिटियोयन। देखो जो ला पैट्रे है, ठीक है, जो ला पैट्रे, इट इज व्हाट, इट इज अ फादरलैंड, इट इज द फादरलैंड, एंड ये क्या है, ये सिटीजन है, ये क्या है, ये सिटीजन है, ठीक है। से यहाँ पर उसका बोलने का मतलब क्या था पता है आप लोगों को, यहाँ पर उसके बोलने का मतलब क्या था पता है, यहाँ पर ला पैट्रे एंड ला सिटियोन, सी यहाँ पर ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यू नो, कि नाउ बिकॉज all those citizens they belong to one land, fatherland, मतलब जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं ना, हम लोग का जो लैंड है मदरलैंड बोलते हैं, so in the time of France they used to say that this was the fatherland, okay, this land belongs to their own, okay, the land belongs to them, not of the monarch, वो monarch का नहीं है वो land belongs to the citizen of the country, the land belongs to the citizen of the country, this land belongs to the, okay, citizen of the country, okay, these are the citizens na, these are the citizens na, and they as a community, and they as a community will have they as a community will enjoy all those rights, okay, they as a community will enjoy all those rights। ये क्या था, ला पैट्री एंड ला सिटियोन था, ठीक है। इफ यू सी सेकंड क्या था, ठीक है, एक था ला पैट्री ला सिटियोन, देन उसके बाद क्या आया, इफ यू सी न्यू 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 फ्लैग, न्यू फ्लैग, एक नया फ्लैग लेकर, इट कैन से दैट ट्राई कलर फ्लैग, ठीक है, ट्राई कलर, ठीक है, न्यू फ्लैग, अब ये भी बोल सकते हो न्यू फ्लैग, ठीक है। देन व्हाट, क्या बोले, हाँ ये भी बोल सकते हैं आप लोग, जैसे कि देखो, they said that what, no regional language, no regional language, ठीक है, कोई भी रीजनल लैंग्वेज नहीं होगा, एंड फ्रेंच विल बी द नेशनल लैंग्वेज, एंड फ्रेंच एज नेशनल लैंग्वेज, ये भी था, ठीक है। और क्या था, ठीक है, ये हो गया, फिर और क्या था, यू कैन से दैट, और क्या होता है, बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, you can say that new national anthem, new national anthem, ठीक है, we can say that new national anthem, ये भी है, we can talk about this as well। then what और क्या बोल सकते हैं, हाँ we can say this also, जैसे कि standardized measures और weights, ठीक है, स्टैंडर्डाइज मेजर्स और वेट, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। और क्या है, एंड लास्ट ये भी था एक, जैसे कि आप लोग उस टाइम भी पढ़े होंगे 9th क्लास में, ठीक है, जैसे कि यू नो द आइडिया, ठीक है, द फ्रेंच आर्मी जो था, ठीक है, फ्रेंच आर्मी जो था, ठीक है, फ्रेंच का जो आर्मी था, दे ऑल्सो स्प्रेडेड, ओके, दे ऑल्सो स्प्रेडेड क्या, द आइडिया ऑफ रिपब्लिक, दे ऑल्सो स्प्रेडेड, ओके, फ्रेंच आर्मी जो था, दे स्प्रेडेड, ठीक है, आइडियाज ऑफ रिपब्लिक, दे स्प्रेडेड आइडियाज ऑफ रिपब्लिक, ये भी था, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। सो दीज ऑल आर सम ऑफ द स्टेप्स, ओके, दीज ऑल आर द सम ऑफ द स्टेप्स, okay, which are actually being taken by those French revolutionaries, okay, by those French revolutionaries in order to create a sense of collective belonging within the people of France, okay, within the people of France। Am I clear?
समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ, देखो उसके बाद क्या हुआ, बाय द टाइम ऑफ यू नो इस इन सब चीजों के बाद, ठीक है, इन सब चीजों के बाद जब ये सब चीज होने लगा, देन बाय 1789, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हैपेंड, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। यही सब स्टेप्स जब लिए, धीरे धीरे लोग सब समझने लगे, लोग समझ कर फिर से आगे बढ़ने लगे, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड, दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789, ओके। देन क्या हुआ, यू विल सी, by the time of 1799, by the time of 1799, okay, Napoleon entry हुआ, Napoleon entered, ठीक है, नेपोलियन आ गए, ठीक है, बाय द टाइम ऑफ 1799 नेपोलियन आ गए, ठीक है। एंड when he came, okay, when he came and saw that जो फ्रांस जो था वो ऑलरेडी एक डेमोक्रेसी था, फ्रांस जो था वो ऑलरेडी क्या था, ठीक है, फ्रांस जो था, फ्रांस was, okay, France जो था was already a democracy, already a democracy, France was already a democracy, and he wanted what, वो फिर से मोनार्की चाहता था, he wanted what, he wanted what, मोनार्की, ये सुनो, समझ में आया कि नहीं? जब नेपोलियन आया 1799 में, he saw that it is a, the France is a democracy, but he wanted to establish himself as the greatest king, and that is why he wanted to change this democracy into a monarch, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ, by 1804, okay, by 1804, okay, I'm sorry, by, okay, by 1804, ठीक है, he was proclaimed the king, he was proclaimed as king, ठीक है, 1804 में उसको किंग बना दिया गया था, एंड बाय 1804, ओके, he introduced what, he introduced civil code of 1804 और नेपोलियनिक कोड, ठीक है, ही इंट्रोड्यूस्ड व्हाट, जब वो राजा बना 1804 में, उसने क्या किया, एक सिविल कोड को, एक कुछ चेंजेस लाए, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में कुछ चेंजेस लाया, जिसको हम लोग सिविल कोड या फिर नेपोलियनिक कोड बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो कोड, जब उसने लॉन्च किया, ठीक है, जब उसने इंट्रोड्यूस किया उस कोड को, ठीक है, there are lot many of people, they are very 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 happy at first, ठीक है, पहले पहले लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा कि नहीं बहुत अच्छा कर रहा है, ये हम लोग को चेंज ला रहा है, एंड ही हैज बीन डूइंग गुड थिंग्स, ठीक है, लोगों को अच्छा लगने लगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ पता ना, लोगों को अच्छा नहीं, लोगों को और खराब लगने लगा, ठीक है। पहले पहले नेपोलियन ने जो भी चेंजेस लाया, पीपल आर वेरी हैप्पी विद द चेंजेस, बट विद टाइम दे वर एक्चुअली बीइंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दिस थिंग, दे आर एक्चुअली गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है। सो इन दैट नेपोलियनिक कोड, ठीक है, इन दैट नेपोलियनिक कोड, तो ऐसा क्या था सब नेपोलियनिक कोड में, ठीक है, वो जो नेपोलियनिक कोड था वो क्या था, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, जो नेपोलियनिक कोड था उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। लेट मी गो थ्रू द एनसीईआरटी फॉर ए मिनट, वेट, ओके, आई जस्ट वांटेड टू सी समथिंग, ठीक है, देखो, सो नेपोलियनिक कोड के हिसाब से क्या था, उन्होंने क्या किया था, पहले उसने सबसे पहला जो अच्छा काम किया था, उसने क्या किया था, एबोलिश कर दिया, किसको, एबोलिस्ट फ्यूडलिज्म, एबोलिस्ट फ्यूडलिज्म, ठीक है, उसने पहले सबसे पहले क्या किया था, उसने एबोलिश कर दिया, किसको ना, फ्यूडलिज्म को एबोलिश कर दिया, ठीक है।
पता है ना फ्यूडलिज्म क्या है? डू यू नो दिस? व्हाट इज दिस फ्यूडलिज्म? व्हाट इज दिस feudalism is? What this feudalism is? See, this feudalism is what? A land will be under powerful landlords. ठीक है, जो लैंड होगा वो पावरफुल लैंडलॉर्ड्स के अंडर होगा, ठीक है, एंड लैंड विल बी गिवन इन रिटर्न फॉर लॉयल्टी एंड मिलिट्री सर्विसेज, ठीक है, जो लैंड होगा, ओके, दिस विल बी आल्सो बी गिवन अंडर फॉर लॉयल्टी एंड मिलिट्री सर्विसेज, ठीक है, ये भी था। एंड उसके और भी बोल सकते हैं, ठीक है, पीजेंट्स उसके उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है, उस लैंड के ऊपर, एंड दे हैव टू सर्व इट, ओके, विथ वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्रीडम, ठीक है, जो पीजेंट्स होते हैं, पीजेंट्स हैव टू वर्क ऑन दोज लैंड, ये है फ्यूडलिज्म, ठीक है, जहां पर थोड़ा पावरफुल लोग होंगे, दे विल बी अंडर दे लैंड विल बी गिवन टू देम एंड पीपल विल बी वर्किंग फॉर देम, ठीक है, ऐसा कुछ था होगा, ठीक है, उस टाइम में फ्यूडलिज्म में। और क्या था? और ये जब ये फ्यूडलिज्म को एबोलिश किए, तो उन्होंने और क्या किया? उन्होंने क्या किया? पीजेंट्स लोग को were given freedom from serfdom, ठीक है, जो मजबूर करके, फोर्सफुल करके जो काम करवाते थे ना, उनसे पीजेंट लोग को भी मुक्ति करवा दिया वो लोग। ये भी अच्छा काम किया था नेपोलियन ने, ठीक है। पहले क्या किया? फ्यूडलिज्म को रोक दिए, ठीक है। फिर क्या किया? पीजेंट्स वर गिवन फ्रीडम, सर्वडम। और क्या बोले? नो प्रिविलेजेस फ्रॉम बर्थ, ठीक है, नो प्रिविलेजेस फ्रॉम बर्थ, ठीक है। सपोज मान लेते हैं हम लोग किसी अच्छे घर से पूरा पैदा हो रहे हैं उसके यहाँ, ठीक है, जो नोबेल क्लास से पैदा हो रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, तो उसको भी बंद किया जाए। नहीं, नो एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस ऑन बर्थ, ठीक है, जन्म से नहीं। अगर तुम हकदार हो तो तुमको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम किसी अच्छे घराने में पैदा हुए इसलिए तुमको दे दिया जाएगा, नो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और क्या था? यू कैन टॉक ऑल्सो। और क्या था? यू कैन से और क्या था? इक्वालिटी। और क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, सब लोग कानून के सामने समान है, ये भी बोले थे। और क्या बोले थे? और ऑल्सो ही सेड दैट हाँ, इम्प्रूव। और उन्होंने क्या किया था? इम्प्रूव कर दे, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये भी अच्छा कर दिए थे। और क्या किए थे? बताओ, बोलो। हाँ, ये भी किए थे। स्टैंडर्डाइज्ड, देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी ये शुरू हुआ था, तो यहाँ पर इन्होंने वही कर दिया, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है, मेजरिंग यूनिट्स, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड मेजरिंग यूनिट्स, ठीक है। एंड देखो ये सब जो चीज है, जो कुछ अच्छे काम, ठीक है, ये जो चीज है कुछ अच्छे काम क्या कौन किए थे? ठीक है, नेपोलियन ने, अंडर द नेपोलियनिक कोड, ठीक है, उन्होंने बोला था। एंड कुछ और भी ऐसा एडिशन उन्होंने किया था जिसकी वजह से लोग पसंद ना पसंद करने लगे। व्हाट ऑल थिंग्स, यू कैन से दीज आर द ब्लंडर्स दैट हैज बीन मेड बाय नेपोलियन, यू कैन से दैट सम ब्लंडर्स, ठीक है। इसी नेपोलियनिक कोड में उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने क्या किया? नो, he said no voting rights to women, नो वोटिंग राइट्स टू वुमन। देखो एक साइड में तुम बोल रहे हो कि इक्वालिटी देना है, और दूसरी साइड में वुमन लोग को वोटिंग राइट्स नहीं देना है, तो ब्लंडर किए, ठीक है, बोले नो वोटिंग राइट्स टू वुमन, ये भी बोल दिए। और क्या बोले? और बोले हाँ, और क्या बोले? उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस्ड?
introduced the introduced the system of censorship. इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सेंसरशिप. सेंसर लगा देना मतलब कि जो अच्छा होगा मेरे में बोलो, बुरा होगा तो उसको नहीं छापना है, नहीं तो तुमको मार दूंगा. फॉर एन एग्जाम्पल जैसे आप कैन थिंक ऑफ द दो कंट्रीज ऑफ नॉर्थ कोरिया. ठीक है ना, वैसे ही कैसा वही है. तो जो भी है उसके बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा. पीपल कांट स्पीक एनीथिंग अबाउट हिम. ओके, एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग. अगर कुछ गवर्नमेंट का बारे में छापना है तो यू हैव टू डू गुड थिंग. हिटलर के टाइम पे वही था ना, हिटलर के टाइम पे 9th क्लास में अगर जर्मन के बारे में कुछ लिखना है, हिटलर का कुछ अच्छा ही लिखो. सेंसरशिप लाना. ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड दिस सेंसरशिप. एम आई क्लियर? ठीक है. और क्या हुआ था हाँ, और क्या हुआ था हाँ, क्या हुआ था, उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स वेर नॉट गिवन टू वुमन. ये भी किया था. ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स वुमन लोगों को नहीं दिया जा रहा था, ये भी था. ठीक है. एंड ऑल्सो लास्टली और क्या किए थे, हाँ, उन्होंने फोर्सफुल रिक्रूटमेंट इन आर्मी. ठीक है, फोर्सफुल रिक्रूटमेंट इन आर्मी, ये भी किया हुआ था उन्होंने. तो दीज आर सम ऑफ द ब्लंडर्स जिसके लिए लोगों को धीरे धीरे नापसंद करना शुरू कर दिया. जो इतना ज्यादा हवा चल रहा था कि नहीं नेपोलियन बहुत अच्छा एक रूलर है, ही इज डूइंग इज गुड एवरीथिंग. तो क्योंकि ये सब ब्लंडर उन्होंने कर लिया एंड बिकॉज ऑफ दीज ब्लंडर्स, ठीक है, धीरे धीरे जो प्यार था धीरे धीरे नफरत में बदलने लगा. एंड पीपल स्टार्टेड टू हेट हिम, पीपल स्टार्टेड गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑल ऑफ दिस चेंजेस दैट हैज बीन डन इन द नेपोलियनिक कोड. समझ में आया कि नहीं? एम आई क्लियर? ठीक है. देखो उसके बाद क्या हुआ, देखो फिर क्या हुआ, एक एरा आया जिसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. जिसको क्या हम क्या बोलते हैं, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. ठीक है. सी by the time of थोड़ा बीचों बीच अगर चलेंगे तो मिड 18th सेंचुरी. ठीक है, बाय द टाइम ऑफ मिड 18th century, if you see the time of mid 18th century, there was no nation states, there was no sense of collective belonging in Europe. ठीक है, फ्रांस को छोड़कर, ठीक है, except for France, there was no collective belonging. There is no collective belonging among the people of Europe. There is no collective belonging among the people of Europe. Am I clear? सबको समझ में आया कि नहीं? Okay. See, क्यों ऐसा था कि लोगों के यहाँ में there was having no collective belonging. See, there was no sense of commonness. Okay, there was no sense of commonness. ठीक है, देयर वाज नो सेंस ऑफ कॉमननेस ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, लोगों के अंदर एक कॉमननेस नहीं था उस टाइम. पीपल वेयर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि नहीं हम लोग पूरा एक पूरा नेशन है. लोगों के यहाँ वो उनके दिमाग में ये नहीं था. ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं देता हूँ. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दूंगा तो जो इटली था, ठीक है, इफ यू गिव एन एग्जांपल, इफ आई गिव अ एग्जांपल, इफ यू थिंक ऑफ इटली तो टोटली डिवीजन था ना, डिवाइडेड था. ठीक है, किसमें? डचेस में. ठीक है, इटली टोटल किसमें डिवाइडेड था? डचेस में डिवाइडेड था. ठीक है, इफ यू थिंक ऑफ दिस स्विट्जरलैंड, ठीक है, इफ यू थिंक ऑफ दिस स्विट्जरलैंड, ये भी कैंटोन्स में डिवीजन था. ठीक है, कैंटोन्स में डिवाइडेड था.
तो ऑलरेडी तो वो लोग अलग अलग बंट बंट कर रह रहे थे, तो उनमें वननेस आएगा कहां से? पीपल डू नॉट हैव दैट कलेक्टिव फीलिंग, दैट कॉमन फीलिंग कि नहीं हम लोग पूरा के पूरा एक नेशन है। लोगों के वो फीलिंग ही नहीं था, एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग पीपल। कि लोग ऑलरेडी तो अलग अलग टुकड़ों में जी रहे हैं ना, ऑलरेडी तो टुकड़ों में जी रहे हैं। अगर टुकड़ों में ही जी रहे हैं तो लोगों के अंदर वो फीलिंग आएगा कहां से कि नहीं हम लोग पूरा के पूरा एक नेशन है? नो, एंड दैट इज व्हाई वी सी, दैट इज व्हाई देयर इज नो कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग द पीपल, देयर इज नो कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग द people. ठीक है, and despite of this, okay, and despite of this much division, despite of this much of डाइवर्सिटी, यू कैन से, इतना डिवीजन था, इतना डाइवर्सिटी था लोगों के यहाँ, इतना लोग अलग अलग थे, फिर भी ये यूनिफिकेशन कैसे पॉसिबल हुआ? फिर भी ये यूनिफिकेशन कैसे पॉसिबल हुआ? हाउ कम okay, they are united, हाउ कम दे आर यूनाइटेड? कैसे ऐसा हो गया? कैसे यूनाइटेड आए? कैसे यूनाइट एक यूनिटी बने? ओके, हाउ कम दे आर यूनाइटेड? ओके, सी, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट वी मस्ट डाइव इनटू द सोसाइटी। ठीक है, लोग वहां पर कैसे रहते हैं? ठीक है, वी मस्ट डाइव इनटू द सोसाइटी। वहां के पहले हम लोग को क्या करना होगा? उनके सोसाइटी को जानना होगा। ओके, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द पीपल। ओके, पीपल दोज हु आर लिविंग इन सोसाइटी, वहां के लोग कैसे हैं? लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा तो वहां पे रहने सहन पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा सोसाइटी है। एंड दिस इज हाउ वी हैव टू क्रिएट अ सेंस ऑफ, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप लोग देखोगे, आप मतलब जब मस्ट हैव हर्ड इन चैप्टर 2 कि क्या था नेशनलिज्म इन इंडिया, अगर आप देखोगे तो वहां पर जब गांधी जब आए, ओके, व्हेन ही टुक यू कैन से दैट, वो रोम जब वो घूमकर आए पूरा, वो देखे कि लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा गरीब है, पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड इफ आई वेयर शूट, ओके, एंड दे कांट कनेक्ट विथ मी, पीपल कांट कनेक्ट विथ मी। ठीक है, अगर सोचो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम चल रहा है और मैं जाऊंगा पूरा जींस पैंट पहन के घूमने चलूंगा, नो, लोग थोड़ी ना मेरे साथ कनेक्ट करके, नहीं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देम आई हैव टू बी लाइक देम, ताकि लोग मेरे को प्रॉब्लम बताए। एग्जैक्टली हैपेंड इन दैट टाइम, एग्जैक्टली दैट हैपेंड। ठीक है, इन ऑर्डर टू नो व्हाट ऑल थिंग्स आर हैपनिंग इन द सोसाइटी, उनके अंदर वो कलेक्टिवनेस बिलोंग, मतलब स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, वी हैव टू नो हाउ द पीपल आर, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू डाइव इनटू देयर सोसाइटी, वी हैव टू डाइव इनटू देयर सोसाइटी। सो वी विल स्टार्ट द सोसाइटी इन द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, द सोसाइटी टिल द लास्ट। Okay, we will go through the unification of Italy, we'll go through the unification of Germany. Okay, we'll have a great talk on that. Okay, we'll start with the society in Europe. During that point of time, we'll start with the society in Europe. If you see the society, in Europe during that point of time, it can be, people are aristocrats. ठीक है, aristocrats, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। People are peasants, and other side people are peasants. ठीक है, workers थे। ठीक है, एक साइड में अरिस्टोक्रेट्स थे, एक साइड में वर्कर्स थे। ठीक है, we'll know about them, we'll have a great talk about them. ठीक है, in the next part. Till then, thank you, goodbye.